I'm Devleena and I scored 97% in my class 10 board examination of the year 2024 to 25, and this video is for my juniors who are going to give their exam in the year 2026. So this video is basically about all the books that I purchased last year for my boards like maths preparation, and I'm going to give you an honest review on each book that I have purchased, and it would help you probably to analyze what book you would need and what book you should get. And I'll also give you some my experience also with these books, and I'll tell you what book helped me and what book did not. So I hope let's talk about it in this video. So let's get into it. So to begin with, let's start with these two books, which are this, which you might probably have, and this, which you should have obviously. So this is your 9th grade NCERT. Now I'm showing you 9th grade NCERT because this thing has a lot of theorems, lot of properties that you require in 10th grade. Now ये तो आपके पास होगी because this is 10th grade की book only, तो मैं साइड में रख देती हूँ. But about this you should have it because it is very necessary to remember everything in this book to solve 10th grade का. And I am showing you this because mostly कभी कभी याद नहीं रहता है. And अगर in case you have like given it away, like अपने कोई junior को अपने दे दी अब 9th की books, then you can obviously have इसका PDF online, तो you can obviously check it out. So I think this was important, इसमें मैंने बता दिया. Now let's move on to the actual books, which are this. Now this one is obviously, you know, this is R.S. Agrawal. I tell you, I purchased this book like I guess I don't know जून में खरीद लिया था because मैंने अपना NCERT का जो भी था वो मैंने almost मई तक ख़त्म कर लिया था. That was because I was bored, इसलिए मैंने किया था, but I forgot it by mid-September. So anyway, whatever. So this is the book that I was telling you about. Now this book is actually very helpful because इसमें बहुत सारे board level की questions हैं. Now if you want to like get exposure to board level की question, this is the best book I think. So I think this is very important, like you can have it. Apart from this, if you don't want this, there's another book that I'm going to show you after this, so you could use that one also. But इसका बताओ तो इसका trigonometry is not that good to be honest, because trigonometry को ज़्यादा अजीब सा है and I did not really enjoy solving those. And I'm not saying it's hard, but it's question literally impractical and like अजीब सा ही है because I don't like it. But apart from that, जो geometry के questions है, it's super amazing. You should definitely like वो तो करना ही चाहिए because I guess हमारे board exam के paper में ऐसे कुछ question आया था which was straight from this book. So I think it's good thing like to have this book. So हाँ, this is definitely 2 by वाला book, so it's approved. Okay, तो उसके बाद we have these 2 books actually. Oh my god, ये दोनों books. These 2 books. Now this is R.D. Sharma. R.D. Sharma के साथ 2 books आते हैं actually. This is one is like वो subject. Oh my god, what's happening? तो एक तो ये subjective वाला book होता है जो इतनी मोटी होती है, और दूसरा MCQ वाला book. ना honestly ना जब मैंने खरीदा था तब I did not notice this book at all and मैंने ये साइड में रख दी थी, तो I think it was lost in that book shelf वगैरह, तो मैंने सिर्फ ये करा था लास्ट में. तो इसके क्वेश्चंस आर अमेजिंग. आई टेल यू, अगर बेसिक मैथ्स भी लिया होता तो ये बेसिक मैथ्स लिया तो ये वाला बुक जरूर खरीद लेना बिकॉज इसमें बेसिक लेवल की क्वेश्चंस है एंड टफ लेवल की क्वेश्चंस भी है. लाइक इट्स डिवाइडेड की लाइक लोअर थिंकिंग और कैपेबिलिटी क्वेश्चंस एंड हायर थिंकिंग कैपेबिलिटी क्वेश्चन, जैसे कि दीज आर लाइक हायर लेवल क्वेश्चंस एंड ऐसे ही यू हैव टू लाइक हैव दीज 2 सेक्शंस ताकि यू कैन फाइंड आउट कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे हो रहा है एंड ऑल दैट. I know I'm fumbling because I don't have an आदत of speaking on camera like this, but हाँ. So I'll tell you, this book is actually very good, so you should go with it. मैंने ये बुक को सिर्फ एक ही बार कंप्लीट किया है बिकॉज बाकी भी बुक्स थे कंप्लीट करने के लिए, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड परचेज टू बी ऑनेस्ट. एंड लास्ट में मैंने सर अपने मैथ्स के सर से वाली बुक बोरो की थी बिकॉज आई थॉट मैंने खरीदा नहीं है, तो फिर क्योंकि ना MCQs ना बहुत टफ आते हैं ऑनेस्टली. लाइक मैं हमेशा MCQ में मार्क्स आते थे स्कूल एग्जाम्स में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुक ले लूँ, तो मैंने सर से बोरो की थी. बट आई फाउंड आउट कि मेरे घर पर भी पड़ी हुई है, तो इट्स ऑल्सो गुड, सो यू शुड जस्ट चेक दैट आउट. एंड आई टेल यू दिस इज ऑल्सो अप्रूव्ड बिकॉज really good books. So let's move to the next book, which is this one. This is Oswal ka book actually. It's a question bank wala book. So I'll tell you about this thing. It is actually a very good book honestly because मेरे जो board exam के जो 5 मार्क के क्वेश्चन थे वो एक क्वेश्चन इससे उठ के आया था, which is something that I was so grateful for because वो क्वेश्चन मैंने ना like it's not a normal question to be honest. It's like some kind of tax something ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था and it was hard and most students को क्वेश्चन हुआ नहीं था and including me. जब मैंने वो पहली बार किया था मुझे भी नहीं हुआ था, but I did that question just 2 days before my board exam and वो क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आ गया था for 5 मार्क्स भाई. तो उस हिसाब से तो I am very grateful to this book. and apart from that इसके trigonometry क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. I mean वेरी टू द पॉइंट क्वेश्चन. to the point questions in sense of कि बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं. मेरे स्कूल एग्जाम के लिए 3 प्री बोर्ड हुए थे, तीनों प्री बोर्ड में एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो इसी बुक से उठ के आए थे, तो आई सेड इट इज़ अ वेरी गुड बुक. तो इट्स लाइक एन अप्रूव्ड बुक फ्रॉम मी माई साइड ऑल्सो. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट बुक वी हैव ऑल इन वन. नाउ दिस बुक it's my lifesaver. I have done this book around 4 times completely and especially कुछ like volume like surface area volume वो सब तो मैंने I guess 5 times किए सारे क्वेश्चन because it's the best book you can have honestly. मैंने सारे को बेस्ट बुक बताया है but this one is बेस्ट का ऊपर से बेस्ट because it's just good. like it is not बोर्ड लेवल का but it is good for बेसिक्स. अभी इसके सारे क्वेश्चन कर लिए तो बाकी क्वेश्चन की you get that hit कि भाई कैसे सॉल्व करना है. so I think this book is definitely should get one and obviously all in one मैंने सारे सब्जेक्ट किए तो you should get one all in one for you for all subjects. साइंस के मतलब because I didn't really like the science वाला but apart from that
गेट दिस बुक भाई, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स जस्ट बेस्ट। तो ये बुक तो ले ही लो, मैं बता रही हूँ। और बेसिक लिया है या फिर स्टैंडर्ड लिया, डजंट मैटर, जस्ट बाय दिस बुक बिकॉज इट्स लाइक सो गुड। एक तो इसमें क्या है, इसमें यू हैव एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लाइक यू हैव एक चैप्टर का यू हैव MCQs एंड देन यू हैव यू नो क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव NCERT सोल्यूशन ऑल्सो। तो जब भी लाइक आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व सम NCERT के क्वेश्चंस, तो इसमें मैं आंसर भी देख लेती थी। तो आई थिंक दिस इज गुड बिकॉज मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है एंड फॉर्मूलाज वगैरह बहुत अच्छे से लिखा है, क्वेश्चन लेवल भी बहुत अच्छी है। तो फिर आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली हैव इन योर बुक शेल्फ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट बुक वी हैव एग्जाम्पलर। अब मैं बताऊँ तो एग्जाम्पलर इज़ नॉट रियली अ गुड बुक। लाइक मुझे उतने पसंद आई नहीं थी बिकॉज इसमें बहुत ही अजीब से क्वेश्चन थे एंड मोस्टली क्या था ना, आई डेंट लाइक द क्वेश्चन पैटर्न ऑल्सो ऑफ दिस बुक, आई डेंट लाइक दिस बुक एट ऑल। बट सब बोलते हैं एग्जाम्पलर का, तो मैंने भी ली थी एक एग्जाम्पलर, आई डिड नॉट यूज़ इट मच दो। तो आई वुड से नॉट टू गेट दिस, बट अगर लेना हो स्कूल वाले बोल रहे हो तो ले लो, बट मैंने तो यूज़ नहीं किया था। तो या लाइक उसमें तो बेसिकली इस बुक में तो सारे ओल्ड वाले क्वेश्चन भी थे ऊपर से, तो आई डिड नॉट रियली लाइक इट ऑल्सो। तो आई थिंक इट्स नथिंग दैट आई लाइक और आई वुड सजेस्ट। बट साइंस का एग्जाम्पलर इज गुड, यू शुड डेफिनेटली बाय साइंस का, बट मैथ्स का आई एम नॉट श्योर। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस then you can get, but this was not a good purchase to be honest. So now we move on to the next book, which is this is not that math book, but this is EduCard का book, but this is science का मैं दिखा रही हूँ because maths का मैंने लिया नहीं था, it was out of stock। but इसका एक similar standard वाली book मैंने अपने neighbor से borrow किया था because even he was given his board exam, तो हमने अपने कभी कभी books से exchange किया था ताकि we can practice। now honestly saying that उस book के questions are very good। ऊपर से there was this one formula, empirical formula or something on that in that statistics chapter। now I did not know that formula existed unless I did that book, and उस formula से बहुत सारे question भी आ गए थे। तो फिर I would say कि भाई get that book also because ये नेक्स्ट टॉपर्स वाली बुक है एक्चुअली। एंड क्या है ना, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी तो मैंने खरीद नहीं पाई, तो इसलिए मैंने अपने नेबर से ले ली थी बिकॉज उनने लिया था। तो उसके साथ 3 सैम्पल पेपर भी मिलते हैं विच इज़ ऑल्सो गुड, बुकलेट भी देते हैं विच इज़ ऑल्सो गुड। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाय दैट बुक। सो हाँ, आई मीन देख, इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स यू नीड टू प्रैक्टिस, देयर आर मोर रिसोर्सेज ऑनलाइन एज वेल, तो उससे भी कर सकते हो एक्चुअली। बट मैंने ली थी बिकॉज हार्ड कॉपी में मैथ्स ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक आई जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल डूइंग ऑनलाइन बिकॉज आई फील लाइक कि जब मैं ऑनलाइन करती हूँ आई शुड लिसन टू म्यूजिक एंड सॉल्व मैथ्स। honestly it literally distracted me in the end, so I would not suggest you to like do maths from online sources if you're not doing mock test papers because mock test मैं सारे online ही किया था। so I think yeah, this book is something like ये science का I don't mind, but मैंने ना standard maths का भी लिया था तो वो भी मैंने किया था। I'll tell you, वो एक 5 मार्क का क्वेश्चन you must have probably seen in that reels thingy कि most hated question, now that question was literally in that book एंड वो मुझसे हो गया था। तो आई थिंक दैट्स इज समथिंग गुड। एंड उसके क्वेश्चन लेवल आर ऑल्सो फ्रॉम बोर्ड पैटर्न, उसमें CBSE का सैम्पल पेपर जो देते हैं वो भी उसमें था, सोल्यूशन वगैरह भी दे रखे हैं एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ गुड बुक। अबाउट आवर लास्ट बुक विच इज़ दिस PW वाला बुक। ना ऑनेस्टली आई वुड से आई वुड नॉट रिकमेंड दिस बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं एंड लाइक इसके क्वेश्चन लेवल आर ऑल्सो वेरी बेसिक। लाइक I mean कॉम्पिटेंसी के नाम पे कुछ भी लिखा है। I mean honestly I'm not offending anyone or something। I mean it's good for basic maths I guess, but standard maths के तो नहीं है, so I would not recommend this। इसके साथ साइंस, मैथ्स, SST तीनों है, तो फिर it has like total of 300 questions per subject। तो I think हाँ 500 questions per subject actually because it has like 1500 questions। तो हाँ, तो this is another book that I would not recommend along with that NCERT exemplar। तो हाँ, तो this is everything I use, all the books I use for my maths preparation। and lastly to end this video I would like to give some tips and strategies that I followed for maths throughout the year। अभी throughout the year अलग and before exams अलग। तो throughout the year मैंने क्या किया था, consistent थी मैंने अपने सिलेबस as soon as possible उसको मैंने खत्म किया था and started buying books and started practicing as many questions as I can because मैं हर एक टेस्ट देती थी। I used to get a new type of question which I could not solve and I felt कि my preparation is not that good because my preparation, because मैथ्स में ना अगर मुझे 100 नहीं आते तो फिर I feel that dissatisfaction। अब बोर्ड्स में I got 98 that is अलग, बट स्कूल में ना हमेशा 79 78 out of 80 उस हिसाब से आते थे। तो फिर I used to not feel कि भाई मेरा प्रिपरेशन इज नॉट दैट लेवल का बिकॉज स्कूल वाले पेपर वाज लाइक लिटिल ईजी टू बी ऑनेस्ट। उस हिसाब से बता रही हूँ, इसलिए I'm telling you be consistent। एंड मैं बताऊँ तो वीकली बेसिस से मैंने 6 to 7 hours मैथ किया है ना। वीकली बेसिस में दैट मे सीम लेस बट ट्रस्ट मी बीइंग कंसिस्टेंट विल बी बेस्ट बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंट हो साल भर, अगर आपने दिन में 3 घंटे भी पढ़ लिया होगा पूरे साल, बस दिन में 3 घंटे ऑल सब्जेक्ट, देन इट इज़ मच इक्विवेलेंट टू योर 3 महीने का 10 घंटे वाली पढ़ाई एंड यू कैन एक्चुअली हैव फन अलॉन्ग साइड दैट। इसलिए मैं बता रही हूँ बीइंग कंसिस्टेंट इज एक्चुअली गुड। अभी से स्टार्ट कर लो तो अच्छे खासे मार्क्स हो जाएंगे एग्जाम के पहले भी, गुड लाइक रिलैक्स एंड ऑल दैट। तो आई वुड से मैथ्स के लिए तो भाई प्रैक्टिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स ऐसे ही नहीं हो जाएगा, मैथ्स यू हैव टू स्पेंड टाइम to actually get the results। So I hope that was understandable and informative I guess। and अगर बाकी सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए होगा तो मुझे बताना बिकॉज अभी के लिए तो मुझे लगता है मैथ्स इज़ लाइक मोस्ट डिमांडेड। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा है, देखा है कि मैथ्स का ही मोस्टली दे आस्क, इसलिए मैंने मैथ्स का बताया। ऊपर से मैथ्स इज वन ऑफ माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, इसलिए मैंने मैथ्स का बेटर वे आई वाज एबल टू गिव। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल। एंड अगर कोई और डाउट वगैरह है तो फिर प्लीज़ डू आस्क मी
बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तो कुछ है नहीं मेरे को बोलने के लिए. सो हाँ, लेट्स साइन ऑफ. बाय बाय.